under the enabling provisions of the Constitution and the law to be allowed allocated reserved seats for women and non-Muslims in terms that a candidate for a seat in the National Assembly or the Provincial Assembly who in his or her nomination paper has declared on oath to belong to PTI and duly submitted a certificate of the same political party confirming that he/she is the nominated candidate of PTI for the respective constituency shall remain so and cannot be declared independent unless he/she submitted a written declaration to the Election Commission of Pakistan or the returning officer to be treated as a candidate of another political party or as an independent candidate. A returned candidate to the National Assembly or the Provincial Assembly who in his nomination paper has declared on oath to belong to PTI and duly submitted a certificate of the same political party confirming that he/she is the nominated candidate of PTI for the respective constituency shall remain so. And this consistent position maintained by a returned candidate throughout the electoral process should be legally recognized by the Election Commission of Pakistan, and such returned candidate cannot be treated as a returned candidate of any other political party or as an independent candidate, returned candidate. And thus, the reserved seats for women and non-Muslims are to be allotted to PTI accordingly. A candidate nominated, number 3, a candidate nominated by PTI for a constituency of a National Assembly or a Provincial Assembly who after being declared returned joined another party or sought to be treated as an independent raises serious concerns about disregarding the trust reposed in him or her by the voters, thus undermining the will of the people. And number 4, the legal implications, effects, consequences of the determination made above in paragraph 2.2 and 2.3, as well as the actions or inactions of Election Commission of Pakistan thereon, although deeply concerning, have not been challenged in the present appeals and petitions, and the persons who would be affected or aggrieved are not parties before this court. Therefore, issuing a definite direction to the Election Commission qua the allocation of specified number of reserved seats for women and non-Muslims to a political party in the National Assembly and the Provincial Assembly would not be legally appropriate. Accordingly, the Election Commission of Pakistan is directed to decide the allocation of reserved seats for women and non-Muslims to political parties in the National Assembly and the Provincial Assembly in the light of the determinations made herein above, after providing opportunity of hearing to the parties concerned, and if required, revisit its earlier decisions on the matter. The needful be done within 7 days of receipt of this order. Thank you. Thank you. Justice Aminuddin Khan sir. For the reasons to be recorded later, I dismiss the appeals, petitions, as well as CMAs, and the judgment of the Peshawar High Court is upheld. Has anyone agreed with you? My Lord, I, Justice Naeem Akhtar, concur with Honorable Justice Aminuddin Khan, and for the reasons to be recorded later on, I am also dismissing all the appeals, petitions and CMAs and uphold the judgment of the Peshawar High Court. Thank you. Now I read Justice Jamal Khan Mandokhel's order with which I agree. For the reasons to be recorded later, we dispose of these appeals, petitions, and miscellaneous applications through a short order as under. These matters involve a controversy regarding the allocation of seats reserved for women and non-Muslims. The Sunni Ittihad Council, SIC, did not contest the general elections of the year 2024. SIC, which demands allocation of reserved seats on account of inclusion of independent parliamentarians in it, did not secure a single seat in the National Assembly or any of the provincial assemblies, nor submitted a list of its candidates for seats reserved for women and non-Muslims.
Thus, it is not entitled to any of the reserved seats either in the National Assembly or in the provincial assemblies. The impugned judgment and order dated 1st March 2024 of the Election Commission of Pakistan, hereinafter ECP, to such extent is upheld. Under Article 51 within bracket 3 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the total number of seats in the National Assembly shall be 326, out of which 60 seats are reserved for women and 10 seats for non-Muslims. Such right of women and non-Muslims has been guaranteed by the Constitution. They shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties list of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly and the provincial assemblies as provided by Article 51 within bracket 6 clauses D and E of the Constitution. Therefore, they cannot be deprived of their such right by leaving these seats vacant, and all reserved seats shall be filled in as provided by Article 224(6) of the Constitution. The impugned judgment of the High Court and the said order of the ECP to the extent of proportional representation, distribution of seats amongst the parties which won and secured seats is also maintained. However, since the ECP calculated and allocated the seats to the parties by the exclusion of the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) candidates, therefore to such extent the impugned judgment of the High Court and the order of the ECP are set aside. During the hearing, it transpired that a number of candidates had submitted their nomination papers with a declaration on oath that they belonged to PTI, supported by an affiliation certificate of the said party. But some did not submit affiliation certificates of PTI. They are members of national and respective provincial assemblies affiliated with PTI. The ECP, by misinterpreting the judgment of this court dated 13 January 2024, which was regarding non-holding intra-party elections in PTI, wrongly mentioned the said candidates of the PTI as independents in Form 33 of the election rules. The ECP had no authority to declare validly nominated candidates of a political party to be independent candidates. Similarly, a candidate once declared himself or herself as a candidate of a political party could not subsequently resile from his candidature of a particular party after the last date of withdrawal of the nomination papers. It is important to mention here that neither the PTI nor any candidate affiliated with PTI approached either this court before or during the hearing of these proceedings or the High Court to challenge the decision of the ECP, declaring them as independents. However, in view of the fact that the appeal and the petition are a continuation of election proceedings before the ECP, we can look into the vagaries of the decision of the ECP in the light of the provisions of Article 51D and E of the Constitution, read with sections 66, 67 and 104 of the Elections Act 2017 to safeguard the interest of women and non-Muslims. As a consequence whereof, the candidates who had submitted the nomination papers and or affiliation certificates by the last date of withdrawal of the nomination papers declaring that they belong to PTI and had not filed a document showing affiliation with another political party should have been treated as the parliamentary party of PTI. But needful was not done by the ECP. Consequently, the PTI as a parliamentary party is entitled to the reserved seats to such extent that ECP should recalculate and reallocate the reserved seat amongst the political parties, including the PTI, as provided by Article 51(6)(d) and E of the Constitution.
The candidates who had submitted the nominations papers by 24 December 2023, which was the last date of submission of nomination papers, and had declared themselves either as the independent candidates or left blank the relevant column in the nomination papers declaration and were elected, shall be considered to be independents. SIC is a registered political party, and every independent member of parliament and the provincial assemblies has a right to join it. All those who joined the SIC are presumed to have done so out of their own free will. None of them claim to have joined SIC because of any misunderstanding of any judgment, the law, compulsion, coercion, or undue influence, and it is not for this court to presume otherwise. We must ensure that words are not read into the Constitution, nor to ascribe artificial meaning to commonly understood words. We must also abide by validly enacted laws and must not do anything either to hinder or to facilitate a political party by ignoring the law's mandate. I think this concludes today's proceedings. Thank you, everyone. Thank you, Sir Rana. Thank you so very much. कोर्ट ने फैसला 8-5 की हैसियत से सुना दिया है और आपको बताएं कि पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। फैसले के मुताबिक एसआईसी आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती, लेकिन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया गया है। साथ ही साथ पीटीआई पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली में बतौर जमात करार दे दी गई। पीटीआई बहसीत जमात मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आइनी हकदार है। आपको बताएं कि 13 रुकनी जो बेंच था उस कमरा अदालत में मौजूद था और फैसला सुना रहे थे। फैसला बताएं तो आपको 8 की अक्सरियत का है। फैसला मंसूर अली शाह ने लिखा है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो आइन के खिलाफ है, ये कहा गया है। और आपको बताएं कि पीटीआई सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। ये फैसला पढ़कर सुनाया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल करार दे दी गई है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल करार दे दी गई है। पीटीआई इस फैसले के 15 रोज़ में अपने मखसूस अफराती नशिस्तों के नाम की फहरिस्त देगी। सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुखालफत की है और इसकी हिमायत में जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी थे। मुखालफत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान शामिल थे और उनके साथ साथ जस्टिस नईम अफगान के जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी इसकी मुखालफत की है। 8-5 की अक्सरियत से फैसला सुनाया गया है। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। अदील, बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना कर रही थी, उसके लिए आज बड़ा दिन है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी तवक्को भी नहीं वो ये कर रही थी। वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हद तक उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल रिवाइवल हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में एक कम बैक किया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो अरकान जिन्होंने ये डिक्लेयर नहीं भी किया था कि वो कौन सी सियासी जमात को ज्वाइन कर रहे हैं, जब इंतखाबी निशान का फैसला आने के बाद एक अभाम की सूरत हाल पैदा हो गई थी, उन्हें भी मौका दे दिया गया और उसके बाद बहसीत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा गया है कि वो बहसीत तहरीक इंसाफ पार्लियामान में कम बैक कर रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कम बैक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक फैसला नहीं है, ये फैसला आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामा भी बता रहा है। ये फैसला बता रहा है कि आने वाले दिनों में इस इमारत के हवाले से बहुत से फैसले जो हुकूमत खुद ये ऑन कर रही थी, खुद ये कह रही थी कि हुकूमत अहम फैसले आईनी तरमीम के जरिए करने जा रही है, वो चैप्टर बज़ाहिर क्लोज हो गया है। और इस हवाले से ये आने वाले दिनों का न सिर्फ सियासी मंजरनामा बल्कि अदालती मंजरनामा भी इसने वाज़े कर दिया है। और वो तमाम जज साहिबान जिनके सवालात, जिनके रिमार्क्स ड्यूरिंग प्रोसीडिंग बहुत कुछ बता रहे थे, आज फैसले की सूरत में वो चीज़ जो उस वक्त इंडिकेशन दे रही थी आज वाज़े हो गई।
जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जो ये समझते थे, जिन्होंने ये रिमार्क्स दिया, इस पे एम्फसाइज किया बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक जो फैसला था। ठीक है अदील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बैरिस्टर अली जफर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, ये जो फैसला, क्या यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था? कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखें, जो फैसला आया, सबसे पहले तो कौम को मुबारकबाद बहुत बहुत इसकी। जी, हमारी तरफ से भी मुबारकबाद वसूल कर लीजिए, आप खुद भी। हमारी जो तवक्कुआत थी उससे भी बेहतर और ज्यादा फैसला आया। हम तो ये कर रहे थे कि ये सुन्नी इत्तेहाद को दी जाएंगी सीटें, लेकिन अदालत ने तो जो हमारा मौक़िफ़ शुरू से ही था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बायस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारी जो ओरिजिनल सिन है वो उनकी है, उन्होंने ही ज्यादती की हमारे साथ शुरू से ही, और उन्हीं की फैसलों की वजह से हमें सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करना पड़ा था पीटीआई को। तो उन्होंने वो सारी चीजें साबित कर दी और हमें कहा कि जो हमारे असल जो जिस हमारे कैंडिडेट्स थे, जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा और जिनको कौम ने इलेक्ट किया, उनको ही वापस कर दिया हमें पीटीआई को। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर एक्सपेक्टेशन और इससे बेहतर जजमेंट हो नहीं सकती थी। अब ये मेजॉरिटी का फैसला है, बल्कि अगर आप देखा जाए तो ये 10 की मेजॉरिटी है जिन्होंने ये फैसला किया है। चीफ जस्टिस साहब ने भी यही कहा है, उनका सिर्फ थोड़ा सा उनसे इख्तलाफ है, जो मेजॉरिटी जजमेंट है उन्होंने तादाद कम की है पीटीआई के कैंडिडेट्स की, लेकिन जो मेजॉरिटी का फैसला है उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने पीटीआई का नहीं भी टिकट का मांगा था पहले, वो लोग भी अभी ऑप्शन उनके पास है कि वो पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं वापस। और यकीनी तौर पे सारे के सारे जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी हैं और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स भी हैं, वो पीटीआई को अब ज्वाइन करेंगे और हमारी तकरीबन अब तादाद इंशाल्लाह और बढ़ के उस पोजीशन में आ जाएंगे जब हम खुद ही गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। अच्छा अली जफर साहब, इसका इफेक्ट बताइएगा। अब इफेक्ट क्या होगा? अब आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं कौमी असम्बली में और बाकी असम्बलीज में जो रहनुमा और लीडर्स मौजूद है, MNA या MPA, अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही होंगे? जी, अब वो जो जितने तो फैसला ये आया है कि जिन कैंडिडेट्स ने पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ा या पीटीआई के कह के कि हम पीटीआई की कैंडिडेट्स हैं उस पे इलेक्शन लड़ा, वो तो ऑटोमेटिकली पीटीआई के बन जाएंगे। और जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कह के इलेक्शन लड़ा, उनके पास 15 दिन का एक ऑप्शन है कि वो पीटीआई को ज्वाइन कर लें। और यकीनी तौर पे जैसा मैंने कहा कि वो सारे के सारे जो हैं वो अब पीटीआई को ज्वाइन करेंगे। तो बेसिकली 100% 100% जो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़े पीटीआई के प्लेटफॉर्म से या सुन्नी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से, वो अब पीटीआई को ज्वाइन कर लेंगे, इंक्लूडिंग चेयरमैन जो थे सुन्नी इत्तेहाद के। ठीक, और अली जफर साहब, आपकी नज़र में ये जो फैसला आया है 187 के अंडर आया है, जो मुकम्मल जस्टिस की बात करता है, आर्टिकल 187? जी, यकीनी तौर पे यही है, क्योंकि हमारा जो मौक़िफ़ था अदालत में, हमने तो मांगा था सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन करने का। हमने पीटीआई वाला ऑप्शन अभी हमारी तरफ से वो इस्ता नहीं थी, लेकिन ये पूरी 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, पूरा इंसाफ देने के लिए अदालत ने ये देखते हुए कि किस तरह सारा कुछ हुआ, पाकिस्तान ने कितनी ज्यादती की, इस चीज को एक जनरल फ्रेमवर्क में ला के तो फैसला किया है। ये फैसला सिर्फ 184 का नहीं, ये 187 को इस्तेमाल किया गया। अच्छा बैरिस्टर साहब, जिस तरह से हुकूमती अगर इत्तेहाद की बात करें, 2/3 अक्सरियत के दावे किए जा रहे थे, उनके ख्वाब तो चकनाचूर हो गए। नंबर गेम की बात करें तो पीटीआई की अक्सरियत ज्यादा होगी इस पे? जी देखिए, बिल्कुल जो उनको उनका एक कोशिश थी और गैर कानूनी और गैर आईनी कोशिश थी, वो साबित हो गया है। वो यही थी कि वो किसी तरह इस गैर कानूनी तरीके से अपनी इतनी अक्सरियत बना लें कि वो आईनी तरमीम कर लें, और बहुत सारी अफवाहें भी आ रही थी कि शायद वो आईनी तरमीम करके। ठीक है अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं, नाजरीन को वो सुनवा देते हैं। इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। आज पूरे कौम के लिए, 25 करोड़ अवाम के लिए, जमहूरी कुव्वतों के लिए, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए, चाहे
पाकिस्तान में हैं या बाहर है, एक खुशी का दिन है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि नवाफिल अदा करे, रब का शुक्र अदा करे। इंशाअल्लाह ताला ये फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इससे हमारा हक आखिरकार हमें मिल गया। ये वही हक था जिसके लिए हम कहते चले आ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक पे डाका डाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिकली 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया है। 11 जजेस ने यूनानिमसली अपने अपने नोट में यही कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार है इन सीटों का। अल्हम्दुलिल्लाह जो 8 और 5 के तनासब से जो अपीलें अलाउ हुई है उसके मुताबिक भी सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मिटाना चाह रहे थे वो रिवाइव हो गई है। हम कमीशन को इस्तदा करते, कमीशन से मुतालबा करते फौरन कि सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पे फौरन अमल दरामद किया जाए। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हमारे इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट हमें इसी हफ्ते में इशू करे। हम पर भी मुतालबा करते कि जल्द से जल्द इन अहकामात पे अमल दरामद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके रिजर्व सीटें दी जाए ताकि जो इलेक्शन रुका हुआ है वो अपने मुकाम पे पहुंच जाए और वो इलेक्शन हो जाए। इस मौका पे मैं ये कहता हूँ इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे चीफ मिनिस्टर के अली अमीन खान साहब ने भी प्ले किया था, जिसने बोल्ड स्टेप लिया था, जिसने इनका ओथ रोका था। हम उनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। आपके बताने के क्या वजह थी कि ये फैसला क्यों नहीं सुनाया? नंबर 1, नंबर 2, पंजाब में इलेक्शन दोबारा होंगे? नहीं, देखो वो इलेक्शन दोबारा इलेक्शन कराने का कोई क्वेश्चन नहीं है और काजी पैसा ने ही इलेक्शन ये रूटीन में ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा पनामा के केस में भी जो जज साहिबान जजमेंट लिखते हैं वो अपना अपना नोट पढ़ के सुनाते हैं। तो काजी पैसा साहब ने कुछ अनमोल नहीं किया कि मंसूर अली शाह साहब ने पढ़ा। ये पहले भी होता रहा है। जब कोसा साहब चीफ जस्टिस नहीं थे, पनामा का केस सुन रहे थे, तो एजाज अफजल साहब ने ही अपना नोट जो पढ़ के सुनाया था। ये होता है रूटीन है। देखे वो एक अलग बात है, लेकिन हमने काजी पाइसा साहब के खिलाफ इस केस पे आदम एतमाद नहीं किया था। यही मशवरा था और ये हमने चलाया था, आसान तरीके से ख़त्म हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका 2/3 मेजॉरिटी जो मांग रहे थे अपने मर्जी के हिसाब से जो आईन में तरमीम करने जा रहे थे वो रास्ता रुक गया। आप भी कुछ बोले। देखिए ये मैं कहता हूँ आपसे, पाकिस्तान की आवाम से आपको मुबारक हो। ये पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे दिन हैं जब ताकतवर और जाबिर के इरादों को मात दी हो अदालत ने, जो ये चाहते थे कि सीटें हमसे छीन कर और हमें माले गनीमत के तौर पे बांट दें और आइन का हुलिया बिगाड़े। आइन तरमीम के जरिए उनके इरादे आज पाश हुए हैं। आज आइन की फतह हुई है। ये बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है। मैं अवाम को खुशखबरी देता हूँ कि आज हमने एक कानूनी जंग जीती है, अब हमें सियासी जंग भी जीतनी है। पाकिस्तान के अवाम का जो इरादा था 8 फरवरी को उसको सलब किया गया, उस इरादे को हमने अपना माना है और हम ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आज की कानूनी फतह एक कदम है उस मंजिल की जानिब। हमारी मंजिल यही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, पाकिस्तान में आइन का दौरा हो और जो लोग आइन और जमहूरियत को पामाल करना चाहते हैं उनको शिकस्त हो। हम खड़े हैं सीसा फैलाई दीवार की तरह, इंशाअल्लाह सदा पे मुजाहमत करेंगे। मैं आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की सदर कौवल शाहजेब साहिबा के भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्हें बड़ा रोल प्ले किया है ये प्रायोरिटी लिस्टें फाइनल करने में। रात 4 बजे तक ये जागती रही, मेरे से वो लिस्टें फाइनल करती रही और इस मुकाम तक लाने में इनका बड़ा रोल है। इनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी अपने ख्यालात का कुछ करें। जी बोलने और यार
नहीं, ये ICA नहीं था, ये अपील है। हमने पिटीशन फाइल कर दी थी, पिटीशन अलाउ हो गई थी, लीव ग्रांट हो गई थी, ये वही है। इसके बाद अपील नहीं है, कोई अपील नहीं। कवल बोलो शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश है आज। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंशाअल्लाह PTI आज कवल बड़ी खुश है। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से जमहूरियत का इस्तेसाल किया गया, अवाम के मैंडेट का खून किया गया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया गया। आज इस अदालत ने इस बात का यकीन दहानी कराई, इस बात का इकरार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफी हुई, अवाम के साथ नाइंसाफी हुई, अवाम वोटर के साथ नाइंसाफी हुई और आज वो नाइंसाफी देखे अंडू हुई है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी अदालत का कि उन्होंने आइन की स्पिरिट के मुताबिक जमहूरियत को मुस्तहकम किया। उन्होंने मेहरबानी की है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसको वोटर्स ने वोट दिया था उसको वापस असेंबलियों तक लेकर आए, जिसको ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया था। अब मेरा इसी बड़ी सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि हमारे लीडर को इलीगल तरीके से नाजायज़ और झूठे केसेस बना के ज़बरदस्ती कैद में रखा गया है। उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है वो उस सलूक को डिजर्व नहीं करते, वहाँ भी इंसाफ करें। इमरान खान की पिटिशंस को फौरन लगाया जाए और फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बैरिस्टर गौहर साहब का जिन्होंने इस पूरे मुश्किल वक्त में खवातीन विंग का साथ दिया, सलमान अकरम राजा साहब का कि इन्होंने इस मुश्किल वक्त में, इस वक्त जब इतनी फसाइयत का दौर था, इन्होंने ये केस हमारी आवाज़ बन के, आवाम की आवाज़ पहला केस इन्हीं ने लड़ा था, यही सीखा। आवाम के जो कोर्ट नंबर 1 में इसको आवाम की आवाज़ बने, न्याजुल्लाह न्याजी साहब का जिन्होंने स्टोलन मैंडेट पे आवाज़ उठाई, हमारे तमाम वकील ILF और अब बिलखुसूस अपनी वुमेन विंग का जिन्होंने ना दिन देखा है ना रात देखी है और ना उन्होंने सीटों की कभी लालच की है, लेकिन वो पाकिस्तान के नज़रिए के साथ खड़ी है, वो इंसाफ के नज़रिए के साथ खड़ी है, वो इंसाफ का बोलबाला करने वाले लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है। आज अल्लाह की तरफ से मदद आई है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज उन खवातीन को जिनका हक बनता था, जिनको आवाम ने वोट दिया उस पार्टी को, तो वापस कर आवाम में लेकर आई है। उनकी बहुत मशहूर। तो जनाब इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो मीडिया टॉक कर रहे थे, खासतौर पर जो बैरिस्टर गौहर खान हैं उनकी जानिब से मुबारकबाद भी कौम को दी गई है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये हमारी सीट थी और हमें ही मिलना चाहिए और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद करे, ये जो आइन में तरमीम करने जा रहे थे वो रास्ता रुक गया है। इसी हवाले से हमारे साथ माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड अबादुर्रहमान लोधी साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर सुमेर खोसा साहब मौजूद हैं और बैरिस्टर जमीर घुमरो साहब भी मौजूद हैं जो कि साबिक एडवोकेट जनरल सिंध हैं। सबसे पहले अबादुर्रहमान लोधी साहब आपकी जानिब बढ़ता हूं, आज ये जो फैसला आया कैसे देखते हैं आप इस फैसले को और अब आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिनेरियो है वो क्या होने जा रहा है? देखें जी, मैं समझता हूं कि बहुत खुशाइंद फैसला है और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़ास तौर पे उन 8 जज हज़रात को जिन्होंने अक्सरियत का फ़ैसला दिया है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वो इख्तियार जो आर्टिकल 187 के तहत टू डू द कंप्लीट जस्टिस उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया है और वो रिलीफ जो PTI तवक्को खुद नहीं कर रही थी वो रिलीफ उनको दे दिया, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हमें मेंबर समझा जाए और उसको वो नशिस्तें दे दी जाएं, लेकिन ये कंप्लीट जस्टिस करते हुए बहुत सी बुराइयों का रास्ता रोक लिया गया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सी ऐसी नज़रें जो ललचाई हुई नज़रें थीं, जो ये मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को देने की वजह से वो लोग रास्ता देख रहे थे कि आइनी तरमीम हो जाएंगी और उनसे उनको बहुत से बेनिफिट हासिल हो जाएंगे, उनके लिए भी ये बहुत मायूसी का दिन है। बहुत खुशाइंद फैसला है। ठीक, बैरिस्टर साहब से मैं इस पर पहले इनिशियली कमेंट ले लेता हूं। बैरिस्टर साहब, आप क्या समझते हैं आज का जो फैसला है, जिस तरह से 187 की बात कर रहे हैं,
187 के अंडर कंप्लीट जस्टिस को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला दिया गया, कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल में ये जो फैसला है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस प्रेमिस पर इंटरप्रेट किया था लॉ को कि राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू किया था, उससे इत्फाक नहीं किया है कि राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो होता है और सियासी जमायतों का जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का राइट होता है उसको इलेक्शन कमीशन ने स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उस इलेक्शन कमीशन के आर्डर को और पेशावर हाई कोर्ट के आर्डर को नहीं माना है और ये कहा पॉलिटिकल मामलात में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन के हवाले से कानून को जो है वो स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू नहीं किया जाए ताकि जो है वो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन से किसी को जो है वो नुकसान नहीं पहुँचे। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है और जैसे इबादुल्लाह साहब ने कहा कि ये 187 में जो PTI ने रिलीफ नहीं मांगा था वो भी उसको दे दिया गया है। तो मेरे ख्याल में अब PTI को शिकायत नहीं होनी चाहिए जुडिशरी के हवाले से और PTI को जो रिज़र्व सीटें हैं वो SIC को भी नहीं, इवन PTI को कहा गया है कि वो एप्लीकेशन दायर करें कि ये सीटें उनको मिलेंगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा फैसला है, उससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो है ये फैसला जो है वो कानून की रोशनी में नहीं है। कानून को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है वो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर बहस करता है और राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही जो है वो उसको आगे रखा गया है और आर्टिकल 187 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को पावर्स हैं कि कंप्लीट जस्टिस करेगा, तो उस हवाले से ये सबसे बड़ा फैसला है। ठीक। अच्छा बैरिस्टर साहब, ज़रा सादा अल्फाज में ये बताइएगा कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है एज ए पॉलिटिकल पार्टी उसका स्टेटस क्या होगा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का स्टेटस क्या रह जाएगा और जितने भी लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हो जाएंगे? जो आज का फैसला सुनाया गया उससे आपने क्या समझा? मेरे ख्याल में यही होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी है कि वो एप्लीकेशन फाइल करें और इससे यही होगा कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जो भी शामिल हुए थे, तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यही होता है कि इनको मखसूस हालात में ये मजबूर किया गया था कि वो काउंसिल का रास्ता अख्तियार करें। तो मेरे ख्याल में उससे भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इत्फाक नहीं किया कि जैसे जो है वो सुन्नी इत्तेहाद में किन हालात में वो शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि वो जो भी इलेक्शन लड़े थे वो PTI के प्लेटफॉर्म से लड़े थे, तो इस वजह से PTI को अगर निशान नहीं भी दिया गया तो वो पॉलिटिकल पार्टी है और वो एप्लीकेशन देगी। मेरे ख्याल में ये जो पिटिशंस थी और जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उससे सुप्रीम कोर्ट काफ़ी आगे गई है और आर्टिकल 187 को जो है वो के तहत अपने पावर्स अख्तियारात जो हैं वो एक्सरसाइज किए कि सुप्रीम कोर्ट कैन डू कंप्लीट जस्टिस। और तो इस हवाले से मेरे ख्याल में PTI पॉलिटिकली भी जो है वो अपने आप को रिवाइव करेगी और जाकर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त देगी कि ये सीटें जो है वो हमें दी जाएं और हम मेरे ख्याल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से भी वो उनकी अलग शनाख्त करने जा रही है। ठीक, यानी कि वो तमाम लोग जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इस वक्त खुद को मेंबर कहते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर बन जाएंगे और जब दरख्वास्त देंगे तब। अच्छा, साथ ही बैरिस्टर साहब इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल था उस पर ज़्यादा डिटेल में अभी कुछ नहीं कहा गया, बट उसके रोल को आप कहाँ पर देखते हैं? क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन इस फैसले की ये तशरीह ना करता जो कि 13 जनवरी को दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने जो फैसला दिया, तो यहाँ तक मामला ना पहुँचते। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल जो है वो जो लॉ के लेटर पर गया था, इलेक्शन कमीशन स्पिरिट पर नहीं गया था, तो उससे ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको इंटरप्रेट किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो उसकी बेसिकली जो ड्यूटी है वो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन को जो है वो मुल्क में बरकरार रखना है, उनको आगे बढ़ाना है। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्रिक्टली लॉ को कंस्ट्रू करके एक सियासी जमायत को जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस से जो है वो बाहर कर दिया। जैसे जस्टिस अतरा मिनल्ला के जो है वो रिमार्क्स थे इसमें, तो और जजेस ने भी जो जैसे जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं वो बड़े माने हुए जज हैं, जस्टिस मंसूर शाह, तो उन्होंने फैसला लिखा है। तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है वो जाहिर है। ठीक है बैरिस्टर साहब, साथ ही हमें बैरिस्टर समीर खोसा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। समीर साहब, सबसे पहले तो आप अपने कमेंट्स दीजिएगा कि ये जो आज का फैसला आया आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये पाकिस्तान